Hello students, welcome to Ashramik Vidyalaya. We will continue our chapter number 4, Literacy Heritage of India. In the previous video, we have to studied the different literature has been worked by the different poets in the time of medieval age. And it's run noteworthy history into the Indian glorious for the literature. Here we have to be studied about the Asian universities of India. Literature should be prosperous and there are many languages should be developed at that time, but into the Asian time. But in which university should be give the run the programs like give the education of that. So here we have to be studied about the different universities of India into the Asian times. Here we have to be see first university, there is a Nalanda University. Here you also see the picture. Students, you must have to be remember these pictures also, because this year in 2020 the theory of Nalanda University should be given by the picture. You have to be recognize this picture and describe this theory. So you must have to be remember these pictures also. Here we have to be see the Nalanda University's picture. So let us start its theory. Asian Nalanda University was situated at Badgaon village of पटना डिस्ट्रिक्ट इन बिहार. बिहार के बडगांव विलेज में पटना डिस्ट्रिक्ट में ये पटना डिस्ट्रिक्ट के बडगांव के विलेज के अंदर ये आई थी. द नालंदा गेव मोर इम्पोर्टेंस इन बुद्धिस्ट एंड जैनिश ट्रेडिशन. नालंदा यूनिवर्सिटी जो है जिसके अंदर बुद्धिस्ट और जैनिश जो ट्रेडिशन है उसके ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था. This Asian university also became pilgrimage of Jains as Mahavir Swami had performed 14 Chaturmas here. महावीर स्वामी जो जैन रिलीजन के धर्मगुरु है उनके द्वारा यहाँ पे उनके धर्म के अंदर जो चतुर्मास होते हैं वो 14 चतुर्मास जो है वो यहाँ पे परफॉर्म किए थे. एंड दैट इज वाई दिस इज द पिलग्रिमेज प्लेस known as also a pilgrimage place. In the 5th century, Kumar Gupta had built a monastery here. 5th century में कुमार गुप्ता ने यहाँ पे monastery यानी कि आश्रम कॉन्वेंट भी बनाए थे. Since then, fame of Nalanda had increased. और तब से नालंदा यूनिवर्सिटी की जो फेम है वो फेम चारों ओर मतलब इंक्रीज हुई थी. There were thousands of priceless treasure of manuscript. This was a pious place of Indian culture. Indian culture का ये pious place है. pious place यानी holy religious place माना जाता है. Students from various part of the world used to come here for study. यहाँ पे दुनिया में से अलग अलग जगह से यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो स्टडी के लिए आते थे. द ग्रेट ट्रैवलर ह्यून सैंग ऑल्सो कम हियर. टुडे ओनली द ruins ऑफ द ग्रेट यूनिवर्सिटी. अभी जो है ये ग्रेट यूनिवर्सिटी की जो ruins है यानी कि जो अवशेष है वही बचे हैं. बट एमिड्स द ruins वन कैन विजुअलाइज द ग्लोरियस कल्चर ऑफ इंडिया. और यही ruins के ऊपर से अगर मानो कि हम लोग अगर उसको देखेंगे तो उसी से हम लोगों को पता चलेगा कि हमारे इंडियन कल्चर जो था वो कितना ग्लोरियस था. अ स्टूडेंट हु पास आउट फ्रॉम नालंदा वाज कंसिडर्ड द आइडियल स्टूडेंट ऑफ इंडिया. जो स्टूडेंट्स यहाँ से पास होकर निकलता था वो सबसे आइडियल स्टूडेंट्स माना जाता था. ड्यूरिंग 5th to 11th century, education was the best at Nalanda and in India. At that time, had best libraries of the world were available. नालंदा यूनिवर्सिटी में जो एजुकेशन था वो 5th to 11th सेंचुरी के अंदर ज़्यादा जो इंक्रीज हुआ था और यहाँ पे लाइब्रेरीज भी
बेस्ट लाइब्रेरीज भी अवेलेबल थे। मैनी स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड यूज्ड टू कम टू फॉर स्टडी एंड रिसर्च इन द लाइब्रेरी ऑफ तक्षशिला एज वेल एज इन नालंदा यूनिवर्सिटी। बहुत सारे स्टूडेंट जो दे हैव टू बी कम फ्रॉम अदर कंट्रीज, अब्रॉड से जो आए थे, दे हैव टू बी कम टू नॉट ओनली स्टडी बट दे हैव टू रिसर्च इन दिस लाइब्रेरी। यहाँ पे तक्षशिला और नालंदा दोनों यूनिवर्सिटी में उन्होंने रिसर्च भी किए थे। ह्यून सेंग टू 657 बुक्स फ्रॉम हियर टू चाइना। ह्यून सेंग यहाँ से 657 बुक्स जो है वो चाइना लेके गए थे। Yun Sang visited in the 7th century. There were 7 huge halls in the universities. ये universities के अंदर 7 huge halls थे. There were 300 rooms for delivering lectures. Lectures के लिए 300 rooms थे. Special monasteries were built for the dwelling of students. Students के रहने के लिए वहाँ पे convent यानी कि आश्रम भी बनाए गए थे. Many villages were donated for university sustenance. यूनिवर्सिटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे विलेज जो है वो भी डोनेट किए गए थे। फूड एंड क्लोथिंग फैसिलिटी वर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द अर्निंग्स ऑब्टेन फ्रॉम दोज विलेज। फूड और क्लोथिंग फैसिलिटी जो है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती थी, ये जो विलेज ऑब्टेन जो डोनेट किए गए थे वहाँ से। इट्स बुक रेपोजिटरी एरिया वॉज नोन एज धर्मगंज। यहाँ पे जो लाइब्रेरी एरिया थी नालंदा यूनिवर्सिटी में उसको धर्मगंज से जाना जाता था। ड्यूरिंग 5th to 11th century नालंदा वॉज अ रेपुटेड एज वेल एज अ एस्टीम्ड सेंटर ऑफ एजुकेशन। 5th से लेकर 11th सेंचुरी तक बिफोर क्रिस्ट ये नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो एक रेपुटेड और एस्टीम्ड सेंटर जो है वो माना गया था।